सदगुरुदेव भगवान की जय। मीराबाई की जय। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸਮਰਸਤਾ ਦਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਇਹ ਯਾਤਰਾ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇੜਤਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਰਾਤ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਲਪਹਾਰ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਲਗਭਗ 16 ਦਿਨ 'ਚ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, 1 ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਔਰ 10 ਦਿਨ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਵਿਖੇ इस यात्रा का जय श्री राम। संगत का पता लगता भी बैठी है ना जी। सो अज ये यात्रा जिहड़ी मेड़ता तो 4 तरीक नूं शुरू हुई सी, पड़ाव दर पड़ाव हुंदे होए दीनानगर दे अंदर मैगस मोंटेसरी स्कूल के अंदर प्रवेश किया है। यात्रा का जो साडा मुख मंतव है वो समाज के अंदर समाजिक समरसता, आपसी भाईचारा मजबूत होवे, क्योंकि बेसिक असी चाहे जिस भी मत नूं मनदे होईए, जो भी असी जीवन दे विच अपनी जीविका चलाउण लई कर्म करदे होईए, वो सारिਆਂ तो हट के जिहड़ा साडा धर्म है ना मुख, वो है इंसानियत। और असी सारे एक ही परमात्मा दे धीआं पुत्तर हाँ। उन्होंने चाहे तुसी कृष्ण कह लो, हरि कह लो, मुरारी कह लो, राम कहो, बीठल कहो, कुछ भी कह के उसनूं याद कर सकते हो। वाहिगुरू कहो, सतनाम कहो, जो भी मर्जी कहते रहो, लेकिन है असी सारे जिहड़े मूल रूप दे विच हाँ, वो एक ही जड़ तो निकले हुए हैं। सो सत्संग जी अज ये जरूरत है, क्योंकि समाज के अंदर वंडियां पाउण वालियां ताकतां बहुत बैठियां ने, जोड़न वालियां ताकतां बहुत घट है। और मेरा तो ये मनना है भी राजनीतिक विषय साडा कोई भी होवे, असी किते भी होईए, लेकिन उस तो हट के असी एक परम पिता परमेश्वर दे धीआं पुत्र होने के नाते असी समाज दे विच आपसी सांझ तां रख सकते हैं ना। वो सांझ नूं पैदा करन दे लई असी पिछले साल एक उपराला कीता कि मीरा चली सतगुर के धाम यात्रा असी आरंभ की और 16 नवंबर नूं श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब के समय के उत्ते इसका शुभ मुहूर्त जो असी लैके चले और इस बारी 4 नवंबर को असी मेड़ता तो इसनूं शुरू किया है। मेरे तो पहला खीवा जी ने दसिया भी ये यात्रा कित्थे किन्ने किन्ने दिन रहनी है और 31 दिन की यह यात्रा है। और दूसरी जिहड़ा साडा ये मीरा चली सतगुर के धाम ये विषय रखन का जिहड़ा मतलब सीगा वो की सी कि मीरा जिहड़ी सीगी ना वो श्री गुरु रविदास महाराज जी की चेली हुई और श्री गुरु रविदास महाराज जी भगत रामानंद जी के शिगिरद हुए। जिहड़े रामानंद जी सी वो आचार्य सी, ब्राह्मण सीगे और उन्हां दे शिगिरदां दे विचों, उन्हां दे शिष्यां दे विचों 6 जिहड़े उन्हां दे शिष्य होए, उन्हां दे 6 दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर दर्ज है। और उन्हां दे विचों श्री गुरु रविदास जी की बाणी भी बहुत जिहड़ी है गुरु ग्रंथ साहब दे विच है।
ਔਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚਤਾ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਜਵਾੜਾ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੀਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਚੇਲੀ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਊਚ ਨੀਚਤਾ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ, ਜਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਖੀਵਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਰਾਗ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਹੰਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਬਾਕਰ ਖਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਲਮਿਕ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ, ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣੀ। ਕਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਲਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਦਿਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਿਖਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਰਸਤਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲੇ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੇੜਤਾ 'ਚ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਮੰਨ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਹੋਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੇਖ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਹੀ ਮੰਨਿਆ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਈ। ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਜਦ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਆਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ भाई साहब जी जरा पढ़ना क्या लिखा है। मैं कहा जी गुरु गोरखनाथ चौक। कहने लगे आप इसके बारे में जानते हो। मैंने कहा नहीं, जो आप पूछना चाहते हो उस वक्त मैं ना बता सकूं तो आप ही बता दो। तो उन्होंने मेरे सामने श्री गुरु गोरखनाथ और मीरा जी का एक उदाहरण दिता। वो उदाहरण की सीगी, वो कहते भी कृष्ण जी दे और गोरखनाथ जी भी अपने आप एक बड़ी शक्ति सीगे। इन्हां दोनों ने गुरु रविदास जी दे कोल जाना एक समय किया, कट्ठे गए। जदों कट्ठे गए तो गुरु रविदास जी कोल जब पहुंचे, उत्थे जाके उन्होंने जल दी पानी की इच्छा जाहिर की भी पानी पीना है।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਵਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ स्वामी महात्मानंद जी विराजमान हैं। तेरी अच्छी बनेगी होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग पुण्य कमाई, रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, मोनिसा में बहुत दिन सोए, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, शुद्ध वित नारी तीन आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, कहत कबीर नाम सिमरन में, कहत कबीर नाम सिमरन में, लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। परम आदरणीय मंचस्थ सभी पूज्य संत चरण, सामाजिक समरसता यात्रा के अधिकारी तथा कार्यकर्ता वृंद, आप हम परम पिता परमेश्वर की संतान, बच्चा पार्टी थोड़ा सा आगे होकर बैठ जाओ, जो जहाँ बैठा है माँ बच्चों का ध्यान रखें। जब जीव इस संसार से दुखी होकर के किसी संत के शरण में जाता है, मीराबाई के पास इस संसार के सारे सुख सुविधाएं थी, फिर भी उसको जीवन के अंदर आनंद नहीं आया। हमारे पास संसार के सुख सुविधाएं हैं, आप अगर आज सोच के देखो, हम जब हाथ दबाते ही मोबाइल में फिल्म चलता है, जो पुराने जमाने में राजा महाराजा को भी ये उपलब्ध नहीं था, कईयों को रखते थे, कहीं नाच गाना देखना हो उनको पाल पोस करके खिला करके रखना पड़ता था, पानी के लिए कुएं में जाना पड़ता था। पुराना समय याद करो, 40, 50, 60, 70 साल पहले राजा महाराजाओं को जो व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं थी, आज हमारे सरकारी चपरासी के पास वो सब उपलब्ध है।
फिर भी हम दुखी हैं। क्यों? नहाने जाना है, हिमाचल जाओ कभी देखो, नहाने जाना है, आधा किलोमीटर चलना है, नीचे जाओ फिर नहा के ऊपर आओ, जब तक नहा के ऊपर आओ फिर पसीना आ जाता है। कहीं भी जाना है मतलब आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चलना है, घर के अंदर बटन दबाते ही पंखा चलता है। जो गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ थी, आपने सुना होगा, हम कहते हैं हमें कोई भजन के लिए बोले ना भजन करो, टाइम ही नहीं मिलता। आपको क्या लगता है गोपियों के पास आपसे कम काम था? उनके पास वॉशिंग मशीन थी क्या कपड़ा धोने के लिए? नहीं थी ना। हमारे पास ऑटोमेटिक मशीन आ गई है, अंदर डाल दो पानी भी अंदर, साग भी अंदर, सुखाता अंदर। आज तो आ गया है कि प्रेस भी होकर के बाहर निकल जाता है, फिर भी हमारे पास भजन करने के लिए समय नहीं है। गोपियां गांव की सेवा करती थी, बछड़ों की सेवा करती थी, उसके बाद मक्खन निकालती थी, फिर बेचती थी। पर जब भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई, गोपियां रुकी क्या? उन्होंने बोला क्या कि अब मेरा टाइम नहीं है, अब मुझे फुर्सत नहीं है, रात का समय है, पति क्या बोलेगा, बच्चे को खिलाना है, घर का काम काज कौन करेगा? नहीं। जब बंसी बजे तो जो भी गोपी जिस भी काम में मग्न थी, आप भागवत में जाएंगे देखेंगे, उसमें रासलीला के समय जैसे ही बंसी बजी, ना किसी ने घड़ी देखा ना समय देखा, वही भाव मीरा का है, मेरे तो गिरकर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। इस जन्म में एक पति है, अगले जन्म में फिर एक पति है, अगले जन्म में फिर और बच्चे हैं, हर जन्म में बदलता रहता है अपना रिश्ता। माँ बाप बदलते रहते हैं, भाई बंधु बदलते रहते हैं, गांव बदलता रहता है, सब कुछ बदलता रहता है। तो हमेशा रास्ता नाता किससे जुड़ा रहता है? हर जन्म में हमारा रिश्तेदार कौन है? एक ही है ना, परम पिता परमेश्वर, जो हर जन्म में हमारे साथ रहता है। बाकी रिश्ते तो शरीर के साथ बदल जाते हैं। तो जैसे ही बंसी बजी तो सारे गोपियां, कोई दूध निकाल रही थी गाय से, कोई बच्चे को खिला रही थी, कोई कपड़ा पहन रही थी, कोई पति के पास थी, जो जहां जिस अवस्था में थे उठे और चल दिए। इसे कहते हैं संसार के सभी कर्मों को उस परमात्मा के आगे छोटा जानते हुए सबसे पहले मेरा जीवन किसके लिए? अपने प्रभु मिलन के लिए, इसलिए यह जन्म मिला है। बाकी मकान बनाना है प्रभु मिलने के बाद, दुकान बनानी है प्रभु मिलने के बाद, शादी करनी है प्रभु मिलने के बाद, बच्चे करने हैं प्रभु मिलने के बाद, सब कुछ संसार को जीत लो प्रभु मिलने के बाद, फिर आपका जीवन सफल है। सारे संसार को आपने इकट्ठा कर दिया, प्रभु रह गया तो जिंदगी बेकार है, किसी काम का नहीं। क्योंकि जिस संसार को इकट्ठा किया उसमें से एक कोई भी साथ रहने वाला नहीं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हुक्म बजाया सबकी दद सत कबूल, सेब देखा न किसी दुनिया देख न भूल। आज्ञा सतगुरु पातशाही महाराज महान कृपा करते जो इस संसार के उत्ते मनुख आया, असल की यात्रा सफल भई यात्रा। हर मनुख यात्रा करने वास्ते आया ने ते साहब कहते हुक्म मचाई सकती दरगाह सच कबूल, साहब देखा मानसी दुनिया देखना भूल। संसार के हर प्राणी को लेखा देना पैदा है। क्यों देना पैदा है? पता है क्यों देना पैदा है?
कि आपा जीवन दे विच ना सेवा ते ना सिमरन करते हैं। ये जड़ा साडी सांझी वार्ता का संदेश है साडा नहीं ना, ये सतगुरु नानक पातशाह महाराज जी का, सतगुरु रविदास महाराज जी का है। सत बचन साधु उपदेश, आपा गुरु का उपदेश तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं कि जो संसार के उत्ते बन रहा है, इस समाज का सुधार हो सके, आने वाले भविष्य की, आने वाले बच्चों की, आने वाले पीढ़ियों की जब तुम पूछेंगे ना बच्चे कि साडा भविष्य क्यों नहीं सुधारा, तो की जवाब देना? जो परमेश्वर पूछेगा कि तू धरती से गया नाम जपण वास्ते, की जवाब देना? आपको वाहेगुरू सारी संगतां को वाहेगुरू। जिथे साहब ने फैसला किया हुक्म जानी सकता, आपा हुक्म दे पे हैं, हुक्म जन में हुक्म माने ने को हुक्म ने को मारे अपना चल आगे कर हर प्राणी ने तो हो जा साडे वड्डे तुर के उदों वड्डे तुर के आपा ने तो जाना तो सतनाम श्री वाहिगुरू सारे तो जाना जिन्ना दे नाम ते ਆਪਾਂ यात्रा लेके तुरे सतगुरु रविदास महाराज जी भाई मेरा जी वो भी संसार को शरीर सारी जगह पे है हाजिर, वो शरीर संसार को सत्या पर साडे विच हाजिर है, पर आपा संसार को तो जना ते रहना नहीं हाजिर, आपा नहीं रहना, अपनी कोशिश नहीं है कि तू संसार के ज्ञान प्राणी तू आयो रहा है लगा के बड़े सब नौकरी चली रहे, इस संसार को सारे ने पूछता जरा उसे दरबार दे जब देखना होता चेहरे जवाब नहीं होता, क्यों रूह का देखा होता? इस सत्संग जीओ ये यात्रा का भाव है कि संसार सुखी बसे, जो सतगुरु पातशाह महाराज जी के हुक्म, सतगुरु रविदास महाराज के हुक्म, उन्होंने हुक्मां लैके तुहाडे तक पहुंचे हैं। आने वाले भविष्य वास्ते, आने वाले बच्चों वास्ते, उन्होंने जीवन सौ जाती। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आषाढ़ के कर है राम की आस, कह नर दोजक जाएंगे, सत पाखे रविदास। ऐसा चाहूं राज मैं, जहाँ मिले सबन को अन्ना, छोट बड़े सब संग से, रविदास रहे प्रसन्न। सब तो पहला मंच के बैठे सारे महापुरुषों ने चरण में बहुत वंदना नमस्कार, और सारी संगत ਨੂੰ जय गुरुदेव। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सांझी वार्ता मीरा चली सतगुरु के धाम। इस यात्रा का आरंभ करने का एक मकसद है कि जिस अकाल पुरख ਨੂੰ, जिस परमात्मा ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਗਏ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਫੇਰ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹਦਾ मतलब कि इंसानियत हौली हौली खत्म होती जा रही है। उसकी जगह किसने ले ली है? माया ने। मीराबाई को किसी चीज की कमी सी, उस समय के राजे राजियां दी थी, किसी चीज की कमी सी नहीं। मेरे ख्याल है कि उन्नी माया साढ़े किसी को नहीं मिली जिन्नी माया उस वक्त
मीरा पुरुष, पर आत्मिक सुख प्राप्त करने वास्ते मीरा ने उस परमात्मा का घर मंगिया, उन्होंने नाम जपिया ते कहते हैं भी जाग बिना कुछ जमना नहीं, चाहे कट कट के लाल हो जाए। इस तरह गुरु है, जो तो गुरु मिल जाता है ना तो मैं मर जाती है, तो उस मालिक के दर्शन हो जाते हैं। मीरा ने विष का प्याला पी के अपने अंदर के विष को खत्म कर देता है कि जात पात ऊंच नीच तो उत्ते उठ के सतगुरु रविदास महाराज की बाणी का प्रचार प्रसार किया है। स्वामी रामानंद जी महाराज बाणी में कहते जात पात ना पूछे कोई, हर का भजे सो हर का कोई। स्वामी रामानंद जी महाराज जी ने जात पात ऊंच नीच तो उत्ते उठ के 12 महापुरुषों को दीक्षा दी, जिन्होंने 6 महापुरुषों की बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब दर्ज है। इसके कहते केड़ी चीज है जिहड़ी जीवत रहती है, वो कर्म है इंसान का। अज भगवान राम जी की कथा सारा संसार करता है। जे मैं तुहानू पूछा कि उन्होंने बारे आप जी किसने दसिया है, आप किसका नाम ले सकते हो? भगवान वाल्मीकि महाराज, जिन्होंने भगवान राम की कथा लिखी, सानू दसिया भगवान महाराज अयोध्या च पैदा हुए, जो जो जिंदगी च होया उसका वर्णन किया है कि उस वेले जात पात सी। जे जात पात सी तो फिर भगवान वाल्मीकि महाराज ने कथा नहीं सी लिखी, ते भगवान राम जी ने उन्होंने उस्तत नहीं सी करनी। आप कृष्ण भगवान जी को मानते हैं, सप्ताह कथा होती है, जग होता है, सारा दिन कथा होती है। भगवान कृष्ण जी ने ना जो पांडवों का जग होया वो संपूर्ण नहीं सी हो रहा, संखनाद नहीं होया। तो सब ने पूछा महाराज जी केड़ी कमी रह गई, कितने कोई त्रुटि है? तो उन्होंने कहा कि आप महाराज जी को लैके आए कहते असं निमंत्रण नहीं दे पाए, कहते जाओ उन्होंने इस जग में लैके आओ। दसिया जाता है कि भगवान वाल्मीकि महाराज उस जग में आए, अनहद नाद वजे, जग संपूर्ण होया, तिना लोगों में जय जयकार। भगवान कृष्ण जी ने बुलाया है, ये जात पात से, इसका मतलब जात पात किसने बना दी है? निषाद राज भगवान राम जी ना बहते ने, भीलनी दे बेर भगवान राम जी खाते ने, ये जात पात भी किसने बना दी? आप मानते तो उन्होंने ही है, आप मानते तो उन्होंने ना, किसी होर नूं तां नहीं मानते। गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते हैं कि मानस की जात सब एक ही पहचान हो, एक पिता एक इसकी हम बारक, सर्व साझी वास देन कोई ना दिसे 12 जियो। कहते सारी दुनिया का मालिक एक है, अकाल पुरख एक है, मालिक भी एक है। पर साडे मनां दे विच असीं ऐसी किहड़ी दीवार खड़ी करती कि रब दे नाम ते गलियां पा जांदियां। इस यात्रा के जरिए असीं हर स्थान स्थान जाके दसदे पे कि मालिक का कोई झगड़ा नहीं है भाई, झगड़ा तो तुसीं पाया होया है, तुसीं नहीं मन करके उन्होंने मनदे, सिर्फ मत्था टेकण तक करके कि मैं भाई मत्था टेक दिता है, मैं भगवान राम जी आपको मत्था टेक दिता है, भगवान कृष्ण महाराज तुहानूं मत्था टेक दिता, तुहाडी गल नहीं मनदे पर मत्था तुहानूं टेक दिता है। मनण की गल है ना, मनने की गत कही ना जाए, जे को कहे पीछे पछता। आज मनण की लोड़ है, जिन्हें मन करके उस अकाल पुरख का नाम सिमरन कर लिया, वो जात पात को उत्ते उठ खड़ता है। साझी वालता का प्रतीक धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का स्वरूप है, जिहदे सारे महापुरुष विराजमान ने। जब गुरुआं ने किसी ने जात पात नहीं की, छोटा वड्डा नहीं कटिया, तो असीं कौन होंदे हां?
ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਮ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਰਮ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰ ਭੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੇ ਤੈ ਗੁਰਾਂ ਸੰਗ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਨਾ ਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀਆਂ, ਜੇ ਤੈ ਗੁਰਾਂ ਸੰਗ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਨਾ ਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਗੁਰਾਂ ਸੰਗ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਨਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਗੁਰਾਂ ਸੰਗ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਨਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੋ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣੀ ਪੈਣੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੋ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣੀ ਪੈਣੀਆਂ। Yeah.
के सातों जान बचनगे रीत चकोर सुनते लगौनी नैया एक गुना संग लौड़ी के लगौनी बैरिया एक संग लौड़ी के लगौनी बैरिया। महाराज जी कहते हैं जिस रब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾਣਾ ਜਾ ਸਕਦਾ जो बोले सुन है सतगुरु रविदास महाराज की जीवन बारे संतां दी महानता बारे स्टेटां नूं इकट्ठा करके ते अज संत सम्मेलन करवा रहे हैं। असीं सारे पुत्रनामा दासीए बन के अज इन्हां संतां दे आशीर्वाद प्राप्त करना, इन्हां दे चरनां विच बैठ के पुत्रनामा दासीए बन के ते भारत देश दा नाम रोशन करना। गोस्वामी श्री गुरु नानक महाराज की, संत गुरु नानकदास महाराज की, महाराज महंत गुरविंदर सिंह जी महाराज, सतगुरु गोस्वामी नाभादास जी ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਯਾਤਰਾ ਮੇੜਤਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਭਾਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਭਗਤਮਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਭਗਤ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਗਤ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਭਾਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਭਗਤਮਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਥ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਭਗਤਮਾਲ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇੜਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਚੜਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭਗਤਮਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਕਦੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਐਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਨੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਮੇੜਤਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੀਰਾ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਭਾਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਕੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਭਗਵੰਤ
गुरु चतुर नाम बप एक, इनके पद बंधन किए, नासत विघ्न अनेक। जिन्हां दे चरणां दी वंदना करिया ही विघ्न अनेक घट जान, वो समाज गरीब नहीं हो सकता, वो सदा ही अमीर रहेगा। मैं यात्रा दे विच साढ़े संतां दे यात्रा प्रमुख संत महंत गुरविंदर सिंह महाराज जी नूं कहांगा कि वह यात्रा दे संदेश नूं इस सांझे मंच तो वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। दीनानाथ भक्त वत्सल करुणा निधान, अपने भक्तों पर अकारण कृपा करने वाले जगदीश्वर सर्वेश्वर परम पिता परमात्मा की महती कृपा अनुकंपा से श्री गुरु नाभादास जी महाराज जी के पावन पवित्र चरण कमलों के अंदर इस भव्य दिव्य दैविक समागम में उपस्थित समस्त भक्तजन, मंचासीन समस्त महात्मागण संत वृंद, सदगुरु नाभादास जी महाराज के चरणों में जयकारा समर्पित करते हुए हम उनको प्रणाम करेंगे। बोल श्री सदगुरु नाभादास जी महाराज की, गलता धाम की, आज के आनंद की। श्री गुरु नाभादास जी महाराज के विषय में हमने यहाँ की प्रबंध समिति एवं परम पूज्य परमादरणीय परम प्रेमास्पद महामंडलेश्वर स्वामी बंसीदास जी महाराज के मुखारविंद से सदगुरु नाभादास जी महाराज की महिमा का श्रवण किया। सदगुरु नाभादास जी महाराज की महिमा का वर्णन किसी के लिए भी करना असंभव है, क्योंकि सदगुरु नाभादास जी महाराज वो महान गुरु हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठ के 4 युगों के समस्त भक्तों के जीवन को अपने पवित्र ग्रंथ भक्तमाल में स्थान दिया और भक्तों की एक माला के रूप में ये भक्तमाल ग्रंथ है। वृंदावन की पवित्र धरती पर जिस समय सदगुरु नाभादास जी महाराज ने भक्तमाल को संपूर्ण कर लिया तो उन्होंने एक संकल्प किया, ये भक्तमाल है, ये भक्तमाला है, अब इसका सुमेरु किसको बनाया जाए। तो साक्षात गोपेश्वर महादेव की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी को इस भक्तमाल का सुमेरु श्री गुरु नाभादास जी महाराज की ओर से बनाया गया। समय नहीं है कि विषय को विस्तार में ले जाया जाए। मीरा जी की पावन पुण्य
धरा मेड़ता से ये समरसता यात्रा जो प्रारंभ हुई है, इसमें सद्गुरु नाभादास जी महाराज द्वारा रचित भक्तमाल, और मैंने जो पूर्व में मंच से एक बहुत सुंदर बात कही गई कि सद्गुरु भगवान श्री गुरु नाभादास जी महाराज के पावन पवित्र स्थान गलता जी तक जो पठानकोट से जयपुर के लिए एक ट्रेन चलाने की बात कही गई है, गाड़ी चलाने की बात कही गई है, हम अपनी समरसता यात्रा और समस्त महापुरुषों की ओर से ये आग्रह करते हैं और ये समर्थन करते हैं कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान ले और गलता जी के लिए गलता धाम के नाम पर जल्दी एक ट्रेन की शुरुआत होनी चाहिए। इसके लिए हम सभी संत, आप लोग जहां चाहें जैसे चाहें, हम श्री गुरु नाभादास जी महाराज के लिए अपने हृदय से जो कुछ भी हमसे बन पड़ता है करने के लिए तैयार है, क्योंकि सद्गुरु नाभादास जी महाराज वो परम वंदनीय, वो कृपालु महापुरुष है। हो सकता है कि अगर सद्गुरु नाभादास जी महाराज इस पवित्र ग्रंथ की रचना न करते तो जिन भक्तों के, जिन महापुरुषों के जीवन से आज हमको अनेकों प्रकार की शिक्षाएं मिल रही हैं, हम उनका नाम तक न जानते होते। और मुझे गर्व है कि आज हमें इस अपने समाज के अंदर इस पवित्र दिन को मनाने का अवसर प्राप्त हुआ, समय प्राप्त हुआ। हमारी यात्रा का भी यही उद्देश्य है जो सद्गुरु भगवान का उद्देश्य था कि संसार में जितने भी लोग हैं, हम जितने भी भारतीय हैं, चाहे हमारी परंपरा कुछ भी हो, चाहे हम सीतानाथ समारंभाम कहते हो, चाहे उमानाथ समारंभाम कहते हो, लेकिन हम सब अलग होते हुए भी एक है, क्योंकि हम सबका मूल एक है। हम उसी नारायण की संतान है, उसी परमेश्वर की संतान है। वयम अमृतस्य पुत्र, हम उस अमृत की ही संतान है। सो मैं आपका समय ज्यादा न लेते हुए मैं भगवान सद्गुरु नाभादास जी महाराज के चरणों में नमन करूंगा। आप मेरे साथ 2 बार दोहराएंगे। श्री गुरु नाभादास जी नमो नमः। 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 वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सद्गुरु नाभादास जी के महाराज जी के चरणों में बारंबार दंडवत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कृपा
संसार भर में आए उन्होंने एक ही होकर दिता है, एक किताब एक किसकी संभार तू मेरा गुरहार। बाबा जी ने बड़ा ही चंगे ढंग के नाल गुरु साहब जी की वार्तालाप आप जी ने सुनाई। हम संतन की रेत प्यारे, हम संतन की शरणा, संत हमारी मोड़ सतानी, संत हमारा कहना। हुण आप जी सारे जानते हो गुरु नानक साहब महाराज जी ने कुल दुनिया की यात्रा करते हुए कभी एक उपदेश नहीं दिता। उपदेश चौकरना को साझा। जे असीं अजकल की गल करिए कि गुरु साहब जी ने, गुरु नानक साहब महाराज जी ने एक उपदेश दिता नहीं। पंजाब, हिंदुस्तान, विश्व की गल है। अज असीं एक दूजे तो पर्दा करके आप एक दूजे तो परां भज जाते हैं। आप देखते ही ना जो कोई रस्ते तुरया जाता किसी को आप सत श्री अकाल या नमस्ते राम नाम किसी को क्यों वो कहते नहीं पराई कर दिता है। यही गल है ये साडी पंजाबीयत है। कहते नंबर मैं टू की पॉइंट गल कर मंच में बैठे साधु जन मैं विदेश के यात्रा करने गया 2016-17 मलेशिया, सिंगापुर, कीनिया, युगांडा, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड बड़े बड़े धर्मां के लोग मिलते सी, बड़े बड़े सूझवान मिलते सी। पठानकोट के रहने वाली मेरी भैन हिंदू भैन की मैं एक बेनती कर रही जो मैं उन्होंने मैंने सद्या से मलेशिया कहते बाबा जी साढ़े घरे आए तुम कितों आए हो। मैं जी मैं व्रत किया कि सतपुरुष महापुरुष बाबा हज़ार सिंह जी छोटे घुमना वाले महापुरुषों के स्थान तो आए। उन्होंने मन इन्ना चाव उठिया, इन्ना प्यार उठिया। वो कहते कि वो जोड़े महापुरुष जोड़े से खतर का बाड़ा होंगे जिन्होंने सारिया साझी वालता का उपदेश दिता। चाहे उन्होंने मोड़ को हिंदू चलिया जाए, चाहे कोई मुसलमान चलिया जाए, चाहे कोई ईसाई चलिया जाए, चाहे कोई सिख चलिया जाए, पर उन्होंने हर एक को गाना बनाया कहते उन्होंने स्थान की सेवा करते हो। मैं कही नहीं कहते फिर तुम उन्होंने नाम क्यों लैता। मैं जी मेरी माता उन्होंने मैंने मेरी 7-8 साल की आई सी जो उन्होंने को लैके उन्होंने जाना ढोलकियां झूठे फड़ के शैणियां जिवें बंदावां सखियां मेरियां भैणां गा रही सी। बड़ा सोहना शब्द ये भी उन्होंने गाते गाते मैनूं एक दिन नाल लै चलो सिख संगतां बेअंत उन्होंने कोल वेंदियां बेअंत एक नहीं थोड़ी नज़ारा करते समा पड़िया दम दे पिंड साल के रहण का बाबा नानक सिंह जी बोर्ड 2000 4 साल संत महापुरुषों के कोल रह के संत है कोई उपदेश गुरु नानक साहब महाराज जी ने इको होकर दिता है भाई एक दे बड़ के रह जाना जिन्ने आप संसार भर के जी हैं सारे आप एक परम परमात्मा की फलवाणी। मेरे स्वामी नित्यानंद जी के कोल तकरीबन 4 महीने के चल 2-3 बार इतने आया सीगा। बड़ा आनंद मिला मैंने इन्होंने कोल जबरे समेत वो कह लगे तुम मेरे भाई हो। मैं बिल्कुल सच है। आप जिन्हें भी बैठिया सारिया तावां भैणां जिन्हें मेरे वीर पिछे बैठे सारे आप भाई। किसी लखारी ने लिखिया बोले शाह ने काफी ने लिखिया बोले शाह तेरे तो वक्त नहीं वो तेरे तो वक्त नहीं पर तेरी देखण वाली अख। परम पिता परमात्मा को देखण वास्ते किसी के जरिए जिवें सतपुरुष महापुरुष बैठे हैं एक जरिया ने परमात्मा के नाल मिलाउण वास्ते तुहाडे कोल तुसीं कल्ले नहीं मिल सकते। इन्ना एक जरिया दसना
ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਈਸਾ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਗੋਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ, ਲੰਕਾ ਜਿੱਤਣੀ ਸੀ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਦ ਗਿਆ ਹਨੂਮਾਨ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੂਰਨ ਰਿਸ਼ੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ? ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਵੱਟੇ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਡਾ ਤਗੜਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨੂਮਾਨ ਜਿਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਸ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈ ਬੈਠੇ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹਨਾਂ ਹੋ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ। ਤੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਇੱਕੋ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੀ ਨਾ ਪਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣੀ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਣਾ ਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਪੇਹਾ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਬੇੜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਭ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਹ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮੇਟਣਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। बोले सोनिहार।